मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦਸੂਹਾ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਦੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ? ਵਧੀਆ? ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 120 ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ, ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਠ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ 3 ਪਾਤਰ ਬਚ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਠ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਈ? ਲੜਾਕਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼? ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਤਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ। ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ। ਹੋਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ। ਕਿਸ਼ਨ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ। ਕਿਸ਼ਨ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ एक होनहार विद्यार्थी है।
मेहनती है, स्कूल दी फीस ते किताबां लई पैसे कमाउण लई बूट पालिश करन दा काम करदा है। ठीक है, ये हुण मैं तुहानूं एक एक्सप्लेन करके दस दित्ता कि तुसीं ये लिखना किवें है। मेहनती है, होनहार है। हुण जिहड़ा भी तुसीं पॉइंट हैडिंग दिओगे उहनूं सोहणे तरीके दे नाल तुसीं एक्सप्लेन भी करोगे। अच्छा, एक तो मेहनती सी, होनहार सी, होर इत्थे आएगा किरत दा सत्कार करन वाला। तीसरा पॉइंट साडा आ गया किरत दा सत्कार करन वाला, मतलब किसी भी काम नूं छोटा वड्डा नहीं समझदा। बूट पॉलिश करन दा काम नूं छोटा नहीं लगदा क्योंकि उहदियां जरूरतां पूरीआं हो रहीआं उस काम नाल। ते सगों वो ये भी कहंदा है कि विदेशां दे विच भी ते बच्चे आप कमा के पढ़ते हैं, उत्थे भी तो काम की कदर की जाती है। साडे देश विच पता नहीं किरत दा सत्कार कदों होवेगा। ठीक है, इस पॉइंट दे विच तुसीं ये चीज़ लिख देनी है, किरत दा सत्कार करन वाला। फिर वो सी दयालु। दयालु किवें दिखाया गया इत्थे, याद होवे किसे नूं? जे कोई आया सी बस अड्डे दे उत्ते जिहदे प्रति किशन ने अपनी दयालता दिखाई सी, है नहीं याद? कौन आया सी? माई, जिहड़ी कह रही सी कि मेरे बच्चे 3 दिन तो भुखे हैं। फिर किशन ने की कीता सी? किशन ने मंगण आई माई नूं एक आना दे दिता सी ते उसने ये कहा सी एक गरीब ही गरीब दा दुख समझ सकता है। भाव कि वो समझ सकता सी कि उसकी कोई मजबूरी ही होएगी जिहड़ी वो मंगण लगी हुई है। ठीक है, ऐदा कोई नहीं करता, उन्होंने ऐदा लगता है कि एक गरीब ही गरीब का दुख समझ सकता है। जिहड़े अमीर है, पैसे वाले लोग है, वो नहीं समझ सकते कि गरीबां नूं की तकलीफ है। इत्थे हुण उहदी दयालता दसोगे उन्हें की कीता सी। हुण मैं इत्थे पॉइंट लिख दिंदी हां, माई नूं पैसे देने या माई नूं, इहनूं हुण तुसीं एक्सप्लेन आपे करोगे अपने शब्दां च। ठीक है, होर की सी किशन? दयालु हो गया, किरत दा सत्कार हो गया, मेहनती सी, होनहार सी, होर सब दी इज्जत करन वाला। इकांगी दे विचों किते भी किसी नाल बदतमीजी करदा नहीं दिखाया गया। सारियां दे नाल बहुत तमीज़ नाल, बड़ी इज्जत दे नाल पेश आउंदा है। इत्थों तक कि जदों सेठ भी उसनूं बुरा बोलदा है तो अग्गों वो कोई जवाब नहीं दिंदा पलट के। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होएगा। लिख लोगे? चलिए अगे चलो। अगला साडा किहड़ा पात्र रह गया? अगला साडा पात्र रह गया जी, इत्थे हुण मैं लिखांगी सेठ हो गया, किशन हो गया, केसर। फिर वही है सेम जान पछाण लिखोगे तुसी। पाठकां दा ध्यान अपने वाल खिंचदा है ते उहदी केसर दी खासियत की दसी गई है इत्थे? हासा मजाक करन वाला। इत्थे हुण जदों तुसीं लिखोगे बच्चे ते कोशिश करना कि केसर दियां तो बहुत सारियां उदाहरणां किताब च दित्तियां होईयां। हासा मजाक करदा है उहनूं, सेठ नूं बड़े सारे तरीकिਆਂ दे नाल। याद है कुछ? किताब खोलियो बच्चे, बहुत कुछ दिता हुआ है, कोई ना कोई तुसी जरूर उहदे च ऐड करोगे। किरत दा सत्कार इकांगी विच या इकांगी विच केसर नां दा पात्र हासा मजाक करन वाला दिखाया गया है। हर गल हासे मजाक विच करदा है, इत्थों तक कि परेशानियां दे समय विच भी वो
उस समय नूं अपने उत्ते हावी नहीं होण दिंदा, हासे मजाक दे विच ही वो गल टालदा है। व्यंग करन वाला, हासा मजाक करन वाला आया कुछ याद, की लिखोगे इत्थे? दिल है ही किथे, सारा चमड़ी च लुकिया पिया है। सेठ जी तो एको ही असूल दे कायल ने, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। व्यंग करन वाला, व्यंग हुंदा है हासे हासे दे विच किसी नूं कोई सच्चियां गल्लां कह जाणियां, ठीक है। सच्चियां गल्लां हुण इत्थे किहने कहीआं सी? सेठ नूं। किहड़ी गल कही सी उहने? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक उहने कहा सी कि आ टोपी जिहड़ी है ना सेठ जी ने पक्का आज़ादी तो बाद पाई होनी है, ते गंगा गए ते गंगा दास, जमुना गए ते जमुना दास। ये हुंदा व्यंग, हासे हासे दे विच किसी नूं सच्चियां गल्लां कह जाणियां, व्यंग करन वाला दिखाया गया है। होर वो इस्त्री का सत्कार करदा भी दिखाया गया है, ठीक है। इस्त्री का सत्कार करन वाला वो जदों कहता है कि जिथे इस्त्री होवे परिवार वर्गा माहौल लगता है, एक गल तां महसूस नहीं हुंदी। इत्थे तुसीं ये वाली लाइन ऐड कर दोगे, बस अड्डे दे उत्ते इस्त्री सीगी ना एक, बस की उड़ीक कर रहे सीगे, ठीक है। इस्त्री का वो सत्कार करन वाला दिखाया गया है। होर की दिखाया गया है? सोचो, सारा कुछ जे मैं ही दसी गई तो तुसीं की कीता? कुछ भी नहीं। आगे इस्त्री का सत्कार करन वाला, व्यंग करन वाला, हासा मजाक करन वाला, मददगार भी तो सी। वो किहदी मदद कीती सी उन्हें? उन्हें किशन की मदद की सी बूट पॉलिश करवा के, ठीक है। मददगार दिखाया गया है। किशन नाम का पात्र जिहड़ा बूट पॉलिश करता है उसकी वो मदद करता है, किवें? बूट पॉलिश करके, ठीक है। ये आ गया साडा केसर का पात्र। हुण आखिरी पात्र है इस्त्री का, ते इस्त्री पात्र का भी इदां ही तुसीं पॉइंट्स बनाओगे, इदां ही पॉइंट्स बना के कोशिश करो अपने आप तुसीं उहनूं एक्सप्लेन करो, अपने आप अपने शब्दां दे विच लिखो। इस्त्री का पात्र सेम जान पछाण आ गया। फिर इस्त्री किदां दी सी? ओह किरत दा सत्कार करन वाली सी, किरत दा सत्कार करन वाली सी, ठीक है। फिर हमदर्द सी, ओह किद्दी हमदर्द सी? किशन दी। जदों किशन ने उन्हें दस्सिया कि पिता की मौत हो गई सी, पाकिस्तान वेले कतल हो गए सी, माता घर का गुजारा करती है कपड़े सिओ के, ते मैं स्कूल दी फीस ते किताबां जो कि पैसे कमा लेना, उन्होंने उहदे नाल हमदर्दी हुंदी है। उहदियां गल्लां पहलां शुरू दे विच तां कहंदी है कि तुसीं लोग जिथे 4 जणे इकट्ठे हुंदे आ जांदे हो, तुहाडे नाल भाऽ करना बहुत औखा है, नहीं तू पहलों दस। पर जदों उहदियां गल्लां सुणदी है तो फिर उहनूं उहदे नाल हमदर्दी हो जाती है, ठीक है। होर किदां दी सी? ओह हमदर्द सी, किरत दा सत्कार करन वाली सी, हासे मजाक नूं बुरा ना मनण वाली सी। ते हासे मजाक नूं बुरा नहीं मनदी सी, कित्थों पता लगदा है? जदों केसर गल दे विच मजाक करता है, भी उहदे नाल बराबर ही हासे मजाक दे विच उहदा साथ दिंदी है। ते उहनां दा टारगेट कौन हुंदा सी? सेठ, ठीक है। उम्मीद है कि तुसीं इन्हां पात्रां दा पात्र चित्रण कर लोगे। अपनी कापी दे विच बच्चे जरूर लिखना है प्रश्न, जरूर लिखना। ਵੱਡੇ प्रश्न सोहनी तरह इकांगी दे पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करने हैं तां जो ज़्यादा अंक तुसीं हासिल कर सको। बुक का लिंक मैं दे देवांगी, जिन्हां कोल नहीं है पाठ पुस्तक उत्थों ई कंटेंट तो अपनी बुक देख लैण, पढ़ लैण, ते जिन्हां कोल पाठ पुस्तकां घर हैगियां वो अपनियां पाठ पुस्तकां तो इस पाठ नूं जरूर पढ़ो, ठीक है। ते अगले वीडियो दे विच फिर मिलांगे। तद तक लई घरां च रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।